भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर भारत मंडपम में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी देखा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ भी मौजूद रहे। भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, अंतरिक्ष विभाग के सचिव एवं इसरो के चेयरमैन श्रीमान एस सोमनाथ जी, इस सभागृह में उपस्थित विज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए विशेषज्ञ गण, महानुभाव, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है, शुभ अवसर है और हम सब भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली इसलिए कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अथवा नेशनल स्पेस डे का उत्सव मनाने का काम हमारे हिस्से में आया है। आज से ठीक एक वर्ष पूर्व 23 अगस्त 2023 को हमारे एक स्पेस मिशन चंद्रयान ने इतिहास रच करके दुनिया को चकाचौंध कर दिया। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला वो पहला स्पेस मिशन था और तभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की कि प्रतिवर्ष इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि हम जहां एक और चंद्रयान की गुणगान को स्मरण कर सकें, वहीं साथ ही साथ आने वाले समय के लिए कार्यसूची एजेंडा पर चिंतन मंथन भी कर सकें। ये कोई साधारण बात ना थी, जैसे सोमनाथ जी ने कहा। जिस चांद के दीदार के लिए दुनिया इंतजार करती है, उस दिन भारत ने उसे छू करके महसूस किया था। And the world never expected that we would be able to achieve this feat, because our journey in space was just about 55 years long. ISRO was born in the year 1969, the year which is remembered for the first human being having landed on the surface of Moon, Neil Armstrong. And we were just getting born. And today, the same ISRO and the same team, within 50 years, just about half a century, we became the first to have landed on the south pole of Moon before anybody else could do. And therefore, when we observe the National Space Day, it's also a day of introspection, reflection, and also to create roadmaps for the future. And also to ponder about how did we manage to cover this long journey in a short time, and where do we go from here. और यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढें तो ध्यान में आएगा कि हमारे वैज्ञानिकों के पास, हमारे विशेषज्ञों के पास प्रतिभा की कमी ना थी, योग्यता की कमी ना थी, मेहनत करने का मादा भी था, आंखों में अरमान भी थे। आप संग्रहालय में जाइए, सारा भाई अपने बाईसाइकिल के कैरेज पर सामान उठा करके भी साधनों के अभाव की पूर्ति करते थे। और इस सब के बावजूद भी यदि अभाव था तो उस अनुकूलता का जो नीति निर्धारकों के स्तर से अपेक्षित होती है, what was lacking was perhaps an enabling milieu which is expected from the policy planners, from the political leadership, and that was overcome when Prime Minister Modi came in. And for 70 years, space sector had functioned with limited resources and limited funds, also the limited partnerships within and outside.
प्रधानमंत्री ने वो गुजरे समय की बंदिशों को तोड़ करके he broke the taboos of the past and liberated ISRO from the shackles which were constraining, which were limiting its journey. And on the day when Chandrayaan was launched, me and Somnath ji was there. We had more than 5,000 spectators and more than 1,000 media persons. One of the media persons came over and said, there are some critics saying, why this halla-bulla, what is new? And I asked him a simple question. I said, when did you come here last? He said, this is my first time. I said, that is new. And that is precisely during the formal announcement of successful launch of Chandrayaan, I had just spoken 3 sentences. I said, this is a moment of glory for India, a moment of destiny for all of us who are here to witness this at Sriharikota. And then I said, thanks Team ISRO for making us proud, and thanks PM Modi for unlocking the doors of Sriharikota. And that indeed was the turning point. And today, within the last 3 years, there has been a quantum leap. I know how many of us in this room are aware of the fact that we were just 1-digit space startup. सचिव, अंतरिक्ष आयोग और इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ जी, वैज्ञानिकगण, अन्य गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, और ऐतिहासिक क्षण जब विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरा था, हर भारतीय के लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण था। मैंने टचडाउन का लाइव प्रसारण देखा था। हर भारतीय की तरह मैं भी गर्व से भर गई थी। इस सफलता के उपलक्ष्य में नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा करना एक सराहनीय कदम है। मैं समस्त देशवासियों और आप सभी को प्रथम नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत बधाई देती हूं। अपने प्रारंभिक दिनों के अब तक इसरो की यात्रा शानदार रही है। इसरो ने स्पेस सेक्टर में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। जैसा कि यहां उपस्थित वैज्ञानिक समुदाय के लोग जानते ही हैं कि 1-2 दिन पहले ही चंद्रयान की प्रज्ञान सेवर से प्राप्त जानकारी से ये धारणा मजबूत हुई है कि आरंभ में चंद्रमा पूरी तरह मैग्मा का महासागर था और धीरे धीरे शीतल होते हुए वर्तमान स्वरूप की तरफ बढ़ा। इसे वैज्ञानिक भाषा में लूनार मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस कहते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि भविष्य में इसरो द्वारा चंद्रमा के अध्ययन के लिए अन्य मिशन की भी योजनाएं है। मैं संपूर्ण इसरो परिवार तथा विशेषकर चंद्रमा मिशन के से जुड़े सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं देती हूं। आज के कार्यक्रम में विद्यार्थियों की भागीदारी देखकर मुझे खुशी हो रही है। इसरो द्वारा आयोजित भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन और रोबोटिक्स चैलेंज की विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूं। मैं आशा करती हूं कि इसरो द्वारा चलाए जा रहे स्पेस ऑन व्हील्स और स्पेस ट्यूटर्स जैसे कार्यक्रम जनमानस सामान्य एवं विद्यार्थियों में स्पेस के बारे में उत्कृष्टता और जानकारी बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध रहेंगे। देवियों और स्वजनों, स्पेस सेक्टर के साथ साथ इसरो ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अमूल्य योगदान दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसे ही देश के विकास यात्रा में योगदान देते रहेंगे। इस महीने में भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक माने जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई की जयंती भी मनाई जाती है।
ये न केवल महान वैज्ञानिक थे, बल्कि एक दूरदर्शी इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स भी थे। उन्होंने स्पेस सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई संस्थानों की स्थापना की। उन्होंने कहा था, एंड आई कोट, "Those that can apply their insights to the problems of the community and of the nation discover an exciting area of activity where effort is rewarding even while the results so slowly." अनकोट। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनका ये कथन अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि भारत के स्पेस प्रोग्राम का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हुए देश का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। आज के इस आयोजन के विषय टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा भी इसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। देवियों और स्वजनों, स्पेस एक्सप्लोरेशन ने मनुष्य की क्षमताओं को बढ़ाया है, मानव की कल्पना को यथार्थ में बदला है, ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाया है। स्पेस एक्सप्लोरेशन रोमांचकारी होने के साथ साथ एक चुनौती भरा कार्य भी है। इसमें अनेक समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए किए जाने वाले अनुसंधान विज्ञान के विकास को गति देती है और मानव जीवन को बेहतर बनाती है। स्वास्थ्य और चिकित्सा, परिवहन, सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण और सूचना प्रौद्योगिकी समेत ऐसे कई क्षेत्र हैं जो स्पेस सेक्टर में हुए विकास से लाभान्वित हुए हैं। उदाहरण के लिए, आरंभिक चरण की सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षाओं का अध्ययन करने के लिए निर्मित किया गया था। उन सैटेलाइट से प्राप्त ज्ञान के बल पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन का विकास हो सका। आज इसके बिना मानव जीवन की कल्पना संभव नहीं है। देवी और स्वजनों, भारत के स्पेस सेक्टर की प्रगति असाधारण है। चाहे वो कम संसाधनों में सफलतापूर्वक पूरा किया गया मंगल मिशन हो या एक बार में 100 से अधिक सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण हो, हमने अनेक प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की है। निजी क्षेत्रों के लिए स्पेस सेक्टर के खुलने से स्टार्टअप्स की संख्या में बहुत तेज गति भी वृद्धि हुई है। इससे न केवल अंतरिक्ष अनुसंधान की उन्नति हुई है, बल्कि हमारी युवा शक्ति को